Hello students, in continuation with the previous videos of chapter 1 of class 9 chemistry, in this video we are going to understand some important terms or we can say definitions which forms the basis of this chapter. So let's start with the important definitions. The first one is rigidity. ये सारी terms हमने discuss की थी in the comparative table of the properties of solids, liquids and gases, right? So the first term is rigidity. Rigidity means the property of any substance to maintain its shape when subjected to outside force. So बच्चों ये बात ध्यान से समझना that rigid means unbending or unflexible, जिसे अपन बेंड नहीं कर सकते, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. आप कैन यू गैस कि अपन डस्टर को या अपने पेन को या किसी भी सॉलिड को, ब्रिक ले लो, फैन ले लो, उनको हम बेंड कर सकते हैं? नहीं. सो अ स्टोन इज रिजिड. स्टोन भी रिजिड है बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, राइट? सो अ सॉलिड, द एग्जाम्पल्स ऑफ rigidity or the rigid material is solids, right? So solids do not require container to keep them. ये बात ध्यान रखिएगा. Solid is a rigid form of matter and due to their rigidity, solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Thus, the main identifying characteristics of solid is their rigidity. इस बात का ध्यान रखना. It is the main identifying characteristic property of solids. Solids do not require a container to keep them. कभी देखा है कि आपको ब्रिक को या लॉग ऑफ वुड को कभी कंटेनर में रखने की जरूरत है और अगर आपने रखा तो उनकी शेप चेंज हो गई? नो. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दैट इज ब्रिक और लॉग ऑफ वुड और टेबल, चेयर, एनीथिंग आर सॉलिड्स, राइट? Now the second important term is fluidity. The property of any substance to flow easily is known as fluidity and the substance is known as fluid. जैसे rigidity को जो show करते हैं that is rigid, similarly it is fluid. It means a material which can flow easily, right? Examples are liquids and gases. Please keep in mind that a liquid is a fluid form of matter which occupies the lower part of the container. Being fluids, liquid require a container to keep them. A liquid has a well-defined surface, so a liquid can be kept in an open container. The liquid will not escape from the open container by itself. Examples are water and milk. ठीक है? I think आपको ये बात समझ में आई होगी कि लिक्विड को रखने के लिए भी नीड अ कंटेनर. हमें कंटेनर की जरूरत होती है बिकॉज ये फ्लो कर जाता है, राइट? उनकी वेल डिफाइंड सरफेस होती है. कभी भी किसी कंटेनर में यू जस्ट कीप वाटर और मिल्क, आप देखिएगा उसकी सरफेस जो होती है, जो अपर लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, वो क्या होती है? वेल डिफाइंड होती है, वो चेंज नहीं होती है, राइट? द लिक्विड विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाय इटसेल्फ. कि आपने किसी बॉक्स के अंदर या किसी मग के अंदर या किसी कंटेनर में अगर आपने कोई भी लिक्विड रखा है, वाटर रखा है या मिल्क रखा है या लेमनेड कुछ भी रखा है, तो क्या कभी वो अपने आप फ्लो आउट कर जाएगा? नहीं, राइट? नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड इज गैस. प्लीज रिमेंबर, गैस फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. दे रिक्वायर अ क्लोज कंटेनर टू कीप देम एंड दे डू नॉट हैव अ फ्री सरफेस. Now a term is there, free surface. पहले गैस को समझ लेते हैं. Gas will escape if it is kept in open container. That is why gases are usually kept in airtight gas cylinders. For example, cooking gas, that is LPG, is kept in airtight metal cylinders. So from this discussion we can conclude that both liquids and gases are known as fluids. Characteristic of liquids and gases of flowing easily is called fluidity. So, due to fluidity, liquids and gases change their shapes readily when subjected to outside force.
सो हमने एक न्यू टर्म सुनी थी इसमें, दैट इज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैटर का फॉर्म ले लो, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें जिसको अपन को मेंटेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल कंटेनर की या किसी प्रेशर या फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज फ्री सरफेस। फॉर एग्जाम्पल आप सॉलिड लीजिए, कोई भी सॉलिड थिंग। अब इस सॉलिड थिंग को, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस पेन, दिस इज सॉलिड, ठीक है। अब इस सॉलिड को मुझे आप क्या कहेंगे कि इसकी क्या शेप है या इसमें कितनी फ्री सरफेस है? दिस इज वन फ्री सरफेस, ये इसकी फ्री सरफेस है, ये इसकी फ्री सरफेस है, ठीक है। ट्राइंगल में अगर अपन देखते हैं तो ट्राइंगल के अंदर 3 फ्री सरफेसेस होती हैं, स्क्वायर में 4 फ्री सरफेसेस होती है। मतलब जो आप क्यूब जो देखते हैं, जो आप लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो क्यूब होता है आपका, डाइस होता है, उसकी जितनी सरफेसेस होंगी, दीज आर द फ्री सरफेसेस। तो द फ्री सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स, जिसे हमें रखने की या किसी बाउंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपन फ्री सरफेस कहते हैं। सो इन सॉलिड्स इट इज अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ द सब्सटेंस, राइट। लिक्विड के अंदर जो टॉप लेयर होती है वो फ्री सरफेस होती है। बाकी के लिक्विड को हमें 3 साइड से कवर करने की जरूरत होती है। अगर आपने एक भी साइड को हटाया तो वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। और गैसेस को कीप रखने के लिए हमें सब तरफ से बंद करना पड़ेगा। अगर हमने कंटेनर को खुला छोड़ दिया, इफ वी लेफ्ट द कंटेनर ओपन, देन द गैस विल फ्लो आउट, राइट। सो सॉलिड्स हैव फ्री सरफेस अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ सब्सटेंस. Liquids have only one free surface, that is the top surface, and the gases have no free surface. ठीक है. Now the third important definition is compressibility. Compressibility वाला term भी हमने comparative table में पढ़ा था. So it is a measure of how much a given volume of matter decreases when placed under pressure. मतलब हम किसी भी सब्सटेंस को कितना स्क्वीज कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद, जिससे उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए. ठीक है. तो अगर आप किसी भी सॉलिड को अगर स्क्वीज करना चाहेंगे, अगर उसको आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर ले, उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सिमिलरली विद द लिक्विड्स, आप ट्राई कर सकते हैं एट योर होम. कभी भी बकेट में पानी लीजिए, वाटर लीजिए, उस वाटर को अपने हैंड से आप प्रेशराइज करने की कोशिश कीजिए. क्या कभी भी वाटर आपके हैंड के प्रेशर से नीचे जाएगा? नहीं. इसका वॉल्यूम जितना है, वाटर और लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. वी कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स, राइट. सो लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत 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 कम होती है, वो भी बहुत रेयर केसेस के अंदर. एंड द गैसेस तो वी नो दैट कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. सो गैसेस को हम फिल करके भी रखते हैं एलपीजी सिलेंडर्स में और सीएनजी सिलेंडर्स में. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि गैसेस आर कंप्रेसिबल. हमारी एनसीईआरटी में भी 9th एनसीईआरटी साइंस में एक एक्टिविटी दी हुई है फॉर डिस्क्राइबिंग और फॉर एक्सप्लेनिंग द कंप्रेसिबिलिटी. देखिए, दिस इज योर एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा है कि दीज आर द 3 syringes. ठीक है. We have to demonstrate that the gases are highly compressible as compared to solid and liquids. So, we are taking 300 ml syringes. Close the nozzle of each syringe by rubber corks. Now, pull out the piston from all 3 syringes. This is a piston. हमने इन तीनों syringes में से piston को निकाल दिया है. Leave one syringe untouched. Fill the second syringe with water. एंड द थर्ड सिरिंज विद चॉक पाउडर. हमने इस वाली सिरिंज को चॉक पाउडर से फिल कर दिया, इसको वाटर से और इसको एयर से या गैस से. नाउ अप्लाई अ लिटिल ऑफ वेस्लीन ऑन द पिस्टन्स एंड इंसर्ट देम बैक इनटू द सिरिंजेस. ट्राई टू पुश द पिस्टन्स इनटू ऑल द 3 syringes with almost equal force and observe in which of the syringes can you push the piston easily and why. So we can and in which syringe was the piston most difficult to push in, right? So इन तीनों में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चॉक पाउडर का पिस्टन वी आर नॉट एबल टू पुश. वाटर का हम बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर कर पाए तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं पुश कर पाएंगे. एंड गैसेस के अंदर वी कैन इजीली पुश द पिस्टन. ठीक है. सो इन योर नोटबुक यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. प्लीज नोट डाउन द टेबल.
complete the following observation table. In this material, in the syringe of the cylinder of the syringe is air, water and chalk powder. Initial position of the piston आपको mention करनी है, final position आपको mention करनी है, ठीक है. So इससे हमें क्या पता लग रहा है कि we can easily compress the gas with the help of external pressure. That's why gases are highly compressible, while the solids are incompressible and they have definite volume. So in this way, in this video, we have discussed 3 important definitions or terms which are very important according to the characteristic of 3 states of matter.